Assalamu alaikum. In this module, we will continue with our previous lecture, Biomimetic Nanomaterials. In this lecture, we will discuss biomimetic membranes, capsules, and bioreactors. So, the bilipid membrane has served as biomimetic model for decades. As we know, cell is surrounded by a plasma membrane, which is a bilipid membrane. Which means it has lipid bilayer. So ये जो bilipid membrane है, इसने ये सर्व किया है इसने एज अ बायोमिमेटिक मॉडल बहुत अरसे के लिए. A simple example is liposomes. एक सिंपल एग्जाम्पल लाइपोसोम्स की है जो कि लिपिड के वेसिकल्स होते हैं विच आर इजीली फाउंड बाय शेकिंग ऑयल विगरसली इन वाटर. अगर ऑयल को विगरसली शेक करें वाटर के अंदर तो आपको लिपिड के वेसिकल्स मिल जाते हैं. Planar spotted bilayers are also inspired by lipid membranes and are formed by simply dipping a suitable substrate inside an organic aqueous phase. जो प्लेनर स्पॉटेड बाइलेयर्स होते हैं वो भी दे आर आल्सो इंस्पायर्ड बाय द लिपिड मेम्ब्रेन और उनको भी जस्ट डिप करके एक सूटेबल सबस्ट्रेट में तो हम उनको ट्रेन कर लेते हैं. In this diagram you can see the two portions of lipid bilayer membrane. The outer cell membrane show anti-fouling properties. What is anti-fouling property or anti-fouling membrane? It is a property by which unwanted particles cannot attach to the membrane. Unwanted particles कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है जो सेल के अंदर जाके कोई हार्म काज कर सकता है या सेल के लिए फॉरेन है, तो एबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट की कि इट हैव एंटी फाउलिंग प्रॉपर्टी कि वो अनवांटेड सब्सटेंस को स्टिक होने से रोकती है. And the inner membrane have different membrane proteins or channels mediating specific transport. और inner layer जो है membrane की उस पर कुछ different types की proteins होती हैं, like integral proteins हैं, intrinsic proteins हैं, that have functioning of transport के उन के जरिए molecule की movement inward and outward होती है. Membrane proteins और artificial channel based membranes. Mode of thinking that has given rise to the research and advancement of biomimetic membrane and innovation in water filtration technology that aims to replicate a natural process occurring at the cell level. जैसे जैसे बायोमिमेटिक मेम्ब्रेन में और बायोमिमेटिक टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स आती गई तो एक इनोवेशन जो कि वाटर फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, इसमें ये होता है कि आप नेचुरल मैकेनिज्म्स को रेप्लिकेट करते हैं सेल लेवल के ऊपर, which give specifically the highly selective and efficient transport of water molecules across a cell membrane. और सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हमें वाटर की ट्रांसपोर्ट मिलती है. A promising approach to this concept is based on the use of aquaporin molecules. अब इस concept या इस approach में होता क्या है कि aquaporin molecules use किए जाते हैं. A naturally existing protein. अब aquaporin है क्या? ये एक naturally existing protein है that serve as important function of maintaining osmoregulation in living organisms by facilitating water transport through cell wall. इसका क्या function है कि ये ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. और कैसे मेंटेन करती है? बाय फैसिलिटेटिंग वाटर ट्रांसपोर्ट सेल वॉल के थ्रू. तो इस मैकेनिज्म को मिमिक करके या एक्वापोरेंस मॉलिक्यूल्स को मिमिक करके बायोमिमेटिक मेम्ब्रेन्स बनाई गई हैं दैट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेल वॉल. Aquaporin molecule is the ability to restrict the passage of contaminants including bacteria, viruses, minerals, proteins, DNA, dissolved gases, salts, detergents and even protons without encumbering the passage of water. अब aquaporin molecule क्या है कि जो unwanted सब्सटेंसेस हैं या जो कंटेमिनेंट्स हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटीन्स डिफरेंट हो सकती हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, कुछ सॉल्ट्स हो सकते हैं, डिटर्जेंट्स हो सकते हैं, इवन के प्रोटॉन्स, ये इनको पास नहीं होने देता जबकि
वाटर के पैसेज को डिस्टर्ब नहीं करता, अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल. For the past several years, a number of research efforts have been underway in an attempt to utilize aquaporins in the development of new biomimetic membranes technology. बहुत अरसे से ये एफर्ट्स की जा रही हैं और रिसर्च की जा रही है कि एक्वापोरेंस को यूटिलाइज करके और इनका जो नेचुरल मैकेनिज्म है उसको मिमिक करके बायोमिमेटिक मेम्ब्रेन्स बनाई जाए. Biomimetic membranes. Biomimetic membranes hold considerable promise as a low energy option and more effective alternative to desalination, industrial water treatment and other purification application. अब biomimetic membranes के different functions हैं या advantages हैं कि एक ये low energy option टेक्नोलॉजी है और वेरी इफेक्टिव एंड अल्टरनेटिव टू डेसिलिनेशन के जिस प्रोसेस के थ्रू इंडस्ट्रियल वाटर को ट्रीट किया जाता है या वाटर प्यूरिफिकेशन की एप्लीकेशंस में ये बायोमिमेटिक मेम्ब्रेन्स यूज होती हैं. द एक्वापोरिन इनसाइड टेक्नोलॉजी इज essentially a thin film coating that host aquaporin proteins. अब होता क्या है एक्वापोरिन टेक्नोलॉजी में कि एक थिन फिल्म के ऊपर कोटिंग की जाती है एक्वापोरिन की, एक्वापोरिन प्रोटीन्स की कोटिंग कर दी जाती है और वो क्या होता है इन एन एनवायरनमेंट दैट रिटेन्स द नेचुरल एक्टिविटी ऑफ मूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स, और ऐसे इन्वायरनमेंट में कि वो नेचुरल वाटर मूविंग मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी को रिटेन रखें, उनको डिस्टर्ब ना होने दें. अब कोटिंग किस किस शीट पर की जा सकती है? द कोटिंग कैन बी अप्लाइड टू बोथ फ्लैट शीट मेम्ब्रेन्स एंड होलो फाइबर मॉड्यूल्स, कि फ्लैट शीट मेम्ब्रेन्स और होलो फाइबर मॉड्यूल्स दोनों टाइप की मेम्ब्रेन्स पर कोटिंग की जा सकती है एक्वापोरेंस की. The designed approach to applied biomimetic technology involves controlling the amount of integrated aquaporins proteins in order to design membranes to a specific permeability. This is a very important point कि हम इस अप्रोच के थ्रू बायोमिमेटिक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो बायोमिमेटिक मेम्ब्रेन्स बनाते हैं यूजिंग एक्वापोरिन, तो हम एक्वापोरिन की जो अमाउंट है वो हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं विद रिक्वायर्ड टू द स्पेसिफिक परमिबिलिटी, कि हमें एक मेम्ब्रेन चाहिए कम पोर साइज की तो हम उसमें एक्वापोरिन्स की जो यूटिलाइजेशन है वो उस हिसाब से कर सकते हैं. अगर हमें ज़्यादा परमिएबिलिटी चाहिए मेम्ब्रेन की तो उस लिहाज से एक्वापोरिन की यूटिलाइजेशन की जा सकती है. तो एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है बायोमिमेटिक टेक्नोलॉजी का, और इन जिसके अंदर हम सबस्ट्रेट या द एक्वापोरिन्स जो कि हम प्रोटीन्स ऐड करते हैं उनकी अमाउंट को हम ऑप्टिमाइज या इंटीग्रेट कर सकते हैं. पोली इलेक्ट्रोलाइट सपोर्टेड लिपिड बायोलेयर्स. Phospholipid membranes as an important component of cell structures. Phospholipid membranes जो हैं वो एक important component है cell structure का, can create a boundary to separate the internal environment from the external environment of cells. को एक boundary create कर देते हैं. It's just like a boundary जो cell के internal environment को separate करती है external environment से. To better understand the structure, function and properties of biological membranes, researchers have attempted to develop various biomimetic models such as lipid vesicles. So to understand कि क्या स्ट्रक्चर है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनका फंक्शंस क्या हैं, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा बायोमिमेटिक मॉडल्स बनाए हैं जिसके अंदर लिपिड वेसिकल्स यानी लाइपोसोम्स भी इन्वॉल्व हैं. ड्यू टू एम्फीफिलिक नेचर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, एम्फीफिलिक नेचर जो है it is a dual property. The molecule has both hydrophilic and hydrophobic nature. They can spontaneously form hollow spherical closed bilayers in water. अब एम्फीफिलिक नेचर की वजह से लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं कि वो वाटर के अंदर एक स्फेरिकल क्लोज्ड बायो लेयर बनाते हैं. Such biomimetic vesicles have not only served as model biological membranes in our understanding of basic cell physiology, but have also been expanded to numerous applications such as drug vehicles, gene therapy and nano reactors. अब ये जो lipid vesicles biomimetics के थ्रू बनाए
इन्होंने ना हमें सेल की फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में मदद दी, बट अदर लाइफ साइंसेज की जो एप्लीकेशंस है, जैसे कि ड्रग डिलीवरी के तौर पर एज अ ड्रग व्हीकल यूज हुए हैं, जीन थेरेपी में इस्तेमाल हुए हैं लाइपोसोम एंड इन नैनो रिएक्टर्स. सो मैनी चैलेंजेस दैट वी आर नाउ फेसिंग इन द एनर्जी एरिया, जैसे कि अब हम बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, स्पेशली इन एनर्जी साइंस के इम्प्रूवमेंट्स आर नीडेड इन सोलर पैनल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स एंड रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी सॉल्व थ्रू यूज ऑफ नैनो इंजीनियर मटेरियल. अब नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि बायोमिमेटिक टेक्नोलॉजी के अंदर हम नेचुरल मैकेनिज्म्स को यूटिलाइज करके हम मैन मेड या ऐसे नैनो इंजीनियर्ड मटेरियल्स बनाते हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक या एनर्जी एप्लीकेशंस को इन्हांस कर सकती है, कि जैसे कि सोलर पैनल्स हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं, इवन के रिचार्जेबल बैटरीज. सम ऑफ दीज मटेरियल्स हैव बीन डेवलप्ड फॉलोइंग डायरेक्ट इंस्पायरेशन फ्रॉम नेचर. कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो डायरेक्ट नेचर को मिमिक करके बनाए गए हैं, यानी नेचर से इंस्पायरेशन लेके बनाए गए हैं, सच एज द न्यू टाइप्स ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स, जैसे कि नए फोटोवोल्टिक सेल्स हैं विच ट्राई टू इमिटेट द नेचुरल नैनो मशीनरी ऑफ फोटोसेंसिस, जो फोटोसेंसिस का नेचुरल फिनोमिना कॉपी करते हैं. Another interesting example is that using battery electrode with self-assembling nanostructure grown by genetic engineered viruses, और another example is कि genetic engineered viruses को use करके self assembly के process के through rechargeable batteries जो हैं या battery electrodes को enhance किया जा रहा है. Thank you.